Good morning, children. So, welcome to this class. As you know that we already started our chapter 6, political parties. So, students, I told you that in India there are 7 national parties, and these 7 national parties, their foundation year is very important to know. Their ideology is very important to know. So, today we will discuss different political national parties, their foundation year, and their ideology. First of all, yesterday before that, in our previous class, I just told you about the Bharatiya Janata Party. As you know that Bharatiya Janata Party, it was founded in 1980. And you know that this time it is the prominent party and I should say that it is the ruling party now. And one more thing, it is a totally righteous party which believed the cultural, whatever the things were adopted in our, we can say that ancient time and whatever the proceedings were there, the cultural things were there, they adopted all the things as it is. They believed in Hindutva, where I told you that Hindutva is not just inclined to the Hindu religion. It means that the people they should know how to live properly and following the Indian culture. And in this way, they also their ideology was to include the territory, the whole territory in India, especially in Jammu and Kashmir. And I gave you so many examples related to all these, like how they crack all the types of the border obstacles in the path of the merging of Jammu and Kashmir in India. So in this way, we come to know that BJP that was initially it was a small party because it just revived to a Janata Dal. Janata Dal, especially it was before the formation of this formal BJP party, it was before that a Janata Dal. एक जनता दल जनता संघ था, it was a जनता संघ जो कि रिवाइव होकर क्या बना बीजेपी बना और उसमें हमने इसकी आइडियोलॉजी को देखा जहां पर इन्होंने कॉमन सिविल कोड पे बिलीव करते हैं. कॉमन सिविल कोड मीन्स there should be in all religion there will be a common code for all the citizens. Religions are different, but they believe that the whatever the laws are followed in different religions, there that should be also similar. That's why I gave you example of Teen Khala. And in this way, they crack all the obstacles because evidences are also there. Later, they also believe that there should be no religious discussion, there should be no pressurization of the changing of religion. So in this way, we come to know that their thinking was very broad in related to the religion and they believe in equality. So that's why later their uh, their strength, their popularity, it just increasing day by day. That's why the result is today here that it is called a ruling party from you can say that from 2000 at 14 to like the 2018. So in this way we come to know that in 2 times the BJP government that ruled over India, they govern over India. So today we move to the very famous party, the popular party INC, Indian National Congress. Uh, there is some you can say that India is a multi-party system. लेकिन कई बार माइंड में आता है कि हर बार क्या होता है कि कभी बीजेपी जीतती है तो कभी कांग्रेस. तो समटाइम वी फील कि 2 पार्टी सिस्टम है क्या इंडिया में. नो, इंडिया इट इज नॉट अ देयर इज अ 2 पार्टी सिस्टम, इट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. दैट्स व्हाई यू सी दैट इन आफ्टर द 2014 there were before the 2014 and after the 2014 there were the two alliances were there, UPA and NDA. So in this way with that the different parties, different national parties like the CPI, CPIM, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऐसा कई बार लगता है कि इन पार्टीज का तो हमने कभी सुना ही नहीं कि इन्होंने कभी अपनी सरकार बनाई है, गवर्नमेंट बनाई है. लेकिन इनका रोल कब प्रोमिनेंट हो जाता है, इनका रोल कब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती. उस समय जो है ये पार्टी जो अदर नेशनल पार्टीज व्हाट आई एम टेलिंग यू, these parties they merge with the major party and they form the coalition government. So in this way we come to know the importance of these another parties also. हाँ ये बात सही है
कि हमेशा जब चुनाव होते हैं तो दो जो बिग पार्टीज हैं वो कांग्रेस और बीजेपी ही होता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी मीन्स यानी वहां उस समय और भी पार्टी थी, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट पार्टी थी वो कौन सी थी? कांग्रेस थी, जो कि 1885 में आई थी। तो ओल्डेस्ट पार्टी रही। बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस पूरी कंट्री को अगर यूनाइट किया, पूरी कंट्री को अगर पॉलिटिकल अगर किसी ने प्लेटफॉर्म दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, अंडर द सुपरविजन ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अनदर प्रोमिनेंट लीडर्स। And in this way, we come to know that this party was also founded by not an Indian, but it was a Britishers, A.O. Hume. So in this we come to know that this party, that time, A.O. Hume, he also believed that in India there should be some political platform where these leaders, they can raise their issues, they can raise their voice against the Britishers. So in this way, this party was formed. Later, the split was also there. In your earlier classes, you already read about that. कि कांग्रेस के अंदर भी स्प्लिट हुआ था। कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। वो पार्ट कौन से थे? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो वो उस समय की बात है जब दोनों की किस वजह से हुआ था? विचार, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के जब डिफरेंसेस हुए तो ये पार्टी डिवाइड हो गई। हाँ, ये जरूर है कि बाद में ये पार्टी वापस एक हो गई, लेकिन आज भी ये पार्टी डिवाइडेड है। देखो, कांग्रेस जो वर्ड है, कांग्रेस इट इज नॉट अ जस्ट यू कैन से एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम है। कांग्रेस हर कंट्री के अंदर होता है। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब होता है यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी असेंबली होती है उस सबको क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस हर जगह आपको मिलेगी, हर कंट्री में मिलेगी। और यहाँ पर भी जो कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हर कंट्री के, जैसे हमने साउथ अफ्रीका का पढ़ा था, ठीक है, तो वहां उस कंट्री के हिसाब से होता है। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है वो किस तरह से, आपको पता है कि मैंने कहा बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों टाइम जो है कांग्रेस पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल प्ले किया फॉर जस्ट अचीविंग इंडिपेंडेंस। क्योंकि जितनी भी यूं कहा जाए स्ट्रैटेजी बनी तो इस पार्टी के थ्रू ही बनी। नेक्स्ट थिंग थी कि अब हम ये मान सकते हैं कि 47 से लेके 77 यानी जो है 3 डेकेड्स तक तो कांग्रेस पार्टी रही। 1975 में इंडिया में एक इमरजेंसी लगी थी। 75 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और वो जो टाइम था एक ब्लैक, जिसको कहा जाता है कि हमारी हिस्ट्री का एक ब्लैक चैप्टर रहा है, जिसमें बहुत कुछ हुआ इंडिया में। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड मोर अबाउट कि इंडिया में 1975 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, क्यों लगाई और क्या क्या किया। उसके बाद से इस पार्टी का जो है थोड़ा सी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, और उसके बाद 1977 में जो पार्टी आई, जो सरकार बनी, वो जनता दल की बनी। जनता दल की सरकार बनी, उसमें भी उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, इस वजह से वो पार्टी भी ज्यादा टाइम तक गवर्न नहीं कर सकी, और दोबारा से कांग्रेस आई। ठीक है, और कांग्रेस आई कब? 1980 से 1989 तक फिर कांग्रेस है। तो इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का यूं कहा जाए कि एक एरा स्टार्ट हो गया। दैट्स व्हाई समटाइम आई से यू कांग्रेस एरा, क्योंकि पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड था वो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा था। पूरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, वो उस तरफ उसमें ही थी। बट लेटर वंस अगेन आई शिफ्ट टू दैट कि उनकी सबसे पहले हमें समझना होगा कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। देखो चिल्ड्रन, इट्स वेरी नेसेसरी टू नो कि क्वेश्चन कैसा। आई एम जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा आपका कि फाउंडर, हु वाज द फाउंडर हियर, एंड दे कैन ऑल्सो द रीजन ऑफ स्प्लिट और 1 or 2 आइडियोलॉजी। तो कंप्लीटली एक लॉन्ग क्वेश्चन आके 1 और स्पेशली 1 मार्क का क्वेश्चन ही आता है। तो लेट्स मूव टू द आइडियोलॉजी। उनकी जो थिंकिंग थी, मैंने क्या कहा, कांग्रेस क्या थी? पूरी तरह से सेंट्रिस्ट पार्टी थी।
सेंट्रिस्ट, राइटियस्ट, लेफ्टियस्ट एंड सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट का मतलब होता है ना तो वो राइट में थी, ना लेफ्ट में थी, सेंटर में थी, और कुछ चेंजेस जाती थी। व्हाट चेंजेस दे वांटेड? इंडिया को क्या बनाना चाहती थी? मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। एज आई नो दैट यू ऑलरेडी रेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इन नाइन्थ क्लास, उसमें सारा जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का दिया है उसका मतलब यही है। वो मॉडर्न मतलब वेस्टर्न जो कल्चर, देखो उसको भी अडॉप्ट किया हम लोगों ने, और वो उसमें कोई बुराई नहीं। हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जो चीजें अच्छी हो किसी भी कंट्री की हो, दैट्स व्हाई वी इंक्लूडेड सो मेनी आइडियाज, सो मेनी प्रिंसिपल्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, है ना, इन सब से हमने प्रिंसिपल्स लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए जो बेस्ट था। इसलिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करते हैं कि वो इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं। दैट इज मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। मॉडर्न, आधुनिक। सेक्युलर क्या होता है? दैट वेयर द ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, नो ऑफिशियल रिलीजन इज देयर फॉर अ कंट्री। डेमोक्रेटिक, वेयर द पावर इज रिसाइड्स इन द पीपल। रिपब्लिक मीन्स where the president, where the head of the state, head of the country is not on the basis of hereditary, but it is indirectly elected by the people. So it means their ideology was there कि इंडिया को एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। पहली इनकी आइडियोलॉजी ये थी। सेकेंड थिंग इनका क्या था? ये सेंट्रिस्ट पार्टी थी, इसलिए सबसे ज्यादा बिलीव करती थी वेलफेयर ऑफ weaker section and minorities. You also hear about the reservation quotas. These minorities reservation quota जो स्पेशली स्टार्ट हुआ वो इन्हीं रूलिंग पार्टी के टाइम हुआ, तो क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जो इंडिया के जितने भी सेक्शन ऑफ द पीपल है उन सबको राइट मिले, उन सबको उनका जो है अधिकार है। तो जो माइनॉरिटीज हैं, जो बहुत वीकर सेक्शन है, उनके लिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी और बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। ठीक है। One more thing is that they were supporter of new economic policy. First of all, we have to understand here new economic policy. What do you mean by this? LPG. I'm not talking about any gas here. किसी सिलेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, which you also read in your economics, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि हमने जो MNCs हैं उनको इंडिया में आने के लिए लिबरल पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिसमें कि हमने जो बिजनेस में, ट्रेड में जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं उन सबको हटाते। प्राइवेटाइजेशन, दे बिलीव इन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को, इसलिए शायद पढ़ा होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर इन कंपनीज को इंडिया में लाने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्टेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज due to many reasons, through many means. So they believed in this new economy policy, but what was the priority was their human face. Human face means कि आप कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? ह्यूमन को देनी है, ह्यूमैनिटी को देनी है। तो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी वो ये थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट डायनेस्टिक सक्सेशन वाज देयर, मैंने बोला ना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर उसके बाद सोनिया गांधी। ठीक है, सोनिया गांधी कांग्रेस बनी तो वो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, मनमोहन सिंह रहे दोनों बार उस समय तक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को जो है इस पार्टी का फेथ जो था लोगों के अंदर से खत्म होता गया और दूसरी पार्टीज में बिलीव स्टार्ट हुआ, और आज ये जो है एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, एक प्रिंसिपल बिग ऑपोजिशन पार्टी है इंडिया। तो कांग्रेस का जो एक आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस क्या थी, कैसे हुआ इसका, वो मैंने आपको क्लियर किया। नाउ आई शिफ्ट टू AITC। इसके बारे में AITC क्या है? ये तृणमूल कांग्रेस है ना, जो कि स्पेशली वेस्ट बंगाल में है, और ये एक फ्रंट पार्टी है, एक न्यू पार्टी है। 2017 में ही ये जो पार्टी है उसको एनलिस्टेड किया गया। वैसे तो 2016 में इसको जो है नेशनल पार्टी का एक दर्जा दिया गया, बट 2017 में जो लिस्ट आई हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दैट ये 7th नेशनल पार्टी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस जो है वो
एक और नई पार्टी। इसका जो फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था वो 1 जनवरी 1998। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो ज्योति बसु जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो वेस्ट बंगाल के 30 इयर्स तक वो मुख्यमंत्री रहे बिना कोई इंटरप्शन के, कंटिन्यूशन। इट्स अमेजिंग फैक्ट। उसके बाद उनकी डेथ के बाद ममता बनर्जी जो कि कंटिन्यूशन में वहां वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, आपको मालूम है। तो ये जो पार्टी है ये 2016 में आई। अब एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी और आंसर भी मैं ही देने वाली। क्वेश्चन ये है कि 2016 में कौन से चुनाव हुए जिससे कि नेशनल पार्टी बन गई है। 2016 में तो कोई इलेक्शन नहीं हुए थे क्या? अभी तो 2019 में इलेक्शन हुए। तो 2016 में इलेक्शन नहीं हुए फिर भी ये नेशनल पार्टी क्यों आप रिकॉग्नाइज हुई? तो हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल क्या करना है? रिकॉल ये करना है कि हमने देखा था कि व्हाट क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज द नेशनल पार्टी। वो क्राइटेरिया क्या था? लोकसभा चुनाव है तो 6% वोट, या 4 स्टेट के चुनाव की स्टेट असेंबली के उसके अंदर 6% वोट प्लस एडिशन 4 सीट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसको स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जो है 4 सीट से ज्यादा इसको सीट मिली, इसलिए 2016 में क्या हुआ? इसको रिकॉग्निशन मिला। क्लियर? व्हाट इट वाज इट्स आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी क्या थी? बिलीव्ड इन सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हियर मींस they believed in the good relation in center and state relation. Federalism, I also we already read this chapter, federalism, where the parts are divided between different levels and organs. तो यहाँ पर हमने फेडरलिज्म में हमने ये देखा कि स्टेट और सेंट्रल रिलेशन क्या थे, कैसे थे। तो जो तृणमूल कांग्रेस थी ही also believed in this, and it is also a very prominent regional party. Regional party is there. What was the regional party? Yes, Manish. Hello, Manish. Is there any question? Yes, Ramesh. I'll give you last 5 or 10 minutes for your doubts. You don't worry about it. Let's कंटिन्यूशन में क्लास होने दें ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। लास्ट में हम डाउट सेशन रखेंगे, आपके कोई भी होंगे तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब ये जो तृणमूल कांग्रेस है, इट इज नॉट इन पर्टिकुलर इन वेस्ट बंगाल, बल्कि ये एक रीजनल पार्टी के रूप में भी बहुत ज्यादा फेमस हुई, जिसमें आप देखेंगे कि रीजनल पार्टी में कहा, जैसे कि दैट इज एपी, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल की वो एरिया सेम हो गया, तो इट बिकेम ए वेरी ऑल्सो रीजनल पार्टी एज अ फेमस पार्टी। जनरल इलेक्शन जब 2014 के हुए थे तब इसको 34 सीट्स मिली थी। चलिए मैं बताती हूँ आपको, 1% दे रखा, 3.84% इसको मिले, ठीक है, वोट। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 3.84% वोट मिले तो इसका मतलब 6% तो नहीं मिले उसको, फिर वो कैसे हुई? लेकिन मैंने आपको एक क्राइटेरिया और भी बताया था कि ये जो वोटिंग है ये इसको स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेशन में मिली, जो कि इसको नेशनल पार्टी नहीं बनाती। लेकिन जो लोकसभा इलेक्शन हुए वहां पर इसको 34, जहां 4 सीट चाहिए थी, 30 इसको सीट ज्यादा मिली। दैट्स व्हाई इट बिकेम ए 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन इन 2014। तो इसमें आपको इतना ही समझना है, पॉइंट टू पॉइंट ही चीजों को ध्यान में रखना है कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन इसका लीडर रहा, है ना, ये सारी चीजें यही इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
कि आपके क्वेश्चन का आज तक जितने सालों में क्वेश्चन आया एसएससी फाउंडेशन ईयर फाउंडर, दो ही चीजें आई, लेकिन हम थोड़ा सा आइडियोलॉजी का भी ध्यान रखेंगे। थर्ड हम चीज जो जा रहे हैं वो है दैट इज एनसीपी। एनसीपी ये भी कांग्रेस जो पार्टी है उसके स्प्लिट से पार्टी बनी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। अब इसका कांग्रेस पार्टी, आपको मैंने अभी बताया था कि जब कांग्रेस पार्टी बनी थी उसके बाद इस 1885 में इस पार्टी के अंदर बहुत सारे स्प्लिट हुए, और उसका रीजन क्या था? उसके रीजन था आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, वो ही सबसे बड़ा रीजन था। और जब पार्टी स्प्लिट हुई तो दूसरी पार्टी कौन सी बनी? नेशनलिस्ट, है ना, नेशनलिस्ट पार्टी जो बनी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये बनी थी 1999 में। कब बनी? 1999 में। और रीजन क्या था? इट वाज बिकॉज ऑफ द स्प्लिट इन कांग्रेस। अब मैं वो रीजन बताऊंगी कि रीजन क्या था। पहले थोड़ा सा हम इसकी आइडियोलॉजी देख लेते हैं। इट ऑल्सो प्रमोट democracy, secularism, equality, social justice and federalism. What are the principles that are written in our constitution? Most of these parties, they followed their ideology. Only one difference is there, we can say. Samaj, they also favor the very poor workers, poor workers like Congress. They believe that there should be a program and policies for especially unprivileged section of the society, like these workers, factory workers, poor peasants and all the minorities. And I think all the parties, especially who are the ruling party, they become the ruling party. They also just adopted this. हमने बीजेपी में अंत्योदय पढ़ा था, है ना, अंत्योदय पढ़ा, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर उनके लिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं एनसीपी की, जो 1999 में इट वाज स्प्लिटेड because of the Congress split was there, और what was the reason of the split, ये हमें find out करना है। तो reason क्या था? Want that high offices in government be confirmed by the natural citizen of India. So try to understand this. Natural citizen here means कि जिसका birth इंडिया में हुआ, नेटिव कहते हैं ना जिसको, उसका birth इंडिया में हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एनआरआई हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई और रीजन से वो इंडिया में आके रह रहा हो। नेटिव होना चाहिए। दे बिलीव कि जो हाई ऑफिसेज है, व्हाट डू यू मीन बाय हाई ऑफिसेज हियर? मींस जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट है, हाई रैंक पोस्ट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड अदर पोस्ट आर देयर, दैट शुड बी सिक्योर्ड बाय ओनली द नेटिव ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? लेट्स फाइंड आउट। सोनिया गांधी के बारे में अगर आप ज्यादा नहीं जानते तो इतना तो जानते होंगे, शी इज नॉट नेटिव ऑफ इंडिया, कि वो भारत की नेटिव नहीं है और उनका बर्थ जो है इटली में हुआ, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की बात आई तो सोनिया गांधी को दी गई। उस समय जो शरद पवार थे वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें ये बात नहीं अच्छी लगी क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? बी कन्फर्म टू सिटीजन ओनली, हाई पोस्ट शुड बी कन्फर्म टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द पार्टी वॉज स्प्लिटेड। और वो मानते थे कि इस पोस्ट पे केवल इंडिया का ही होना चाहिए, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं। और इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अखबार में चीजें पढ़ी होगी कि कई बार सोनिया गांधी और जो है राहुल गांधी और इन सब चीज को लेके जो है कई कार्टून आते रहते हैं, कई उनके ऊपर हंसी मजाक होते रहते हैं, मिमिक्रीज होती रहती हैं। तो दैट इज द मेजर रीजन। ये एक बहुत बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की है, और इसके अलावा मेघालय, मणिपुर, असम, है ना, इनमें एक रीजनल पार्टी की तरह बहुत ज्यादा फेमस पार्टी है। 2004 में ये यूपीए का मेंबर बनी, ठीक है। यूपीए इधर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एक ये पूरी तरह से फ्रंट पार्टी है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि बीजेपी का है अलायंस, उसके साथ ये मेंबर बना। एंड जो मेंबर तो बना, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी इसमें रोल नहीं, बाहर से इसको सपोर्ट किया। टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर देयर। एक होता है इंटरनली, जहां पर आप गवर्नमेंट में कोई जगह पर जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट में कोई मेंबरशिप मिलती है, कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है, पोर्टफोलियो मिल जाता है, उसमें नहीं, इन्होंने इनको बाहर से ही सपोर्ट किया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एनसीपी थी ये एक नई पार्टी बनकर आई 1999 में बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ द
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टू पार्टी, दिस इज सीपीआई एंड सीपीआई। चलिए देखिए सीपीआई और सीपीआई में क्या हम पढ़ेंगे। सीपीआई दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। एम लगते ही दोनों में फर्क आता है। देखो सीपीआई जो है, सीपीआई जो पार्टी है 1925 में कानपुर में बनी थी। अब हमें चीजों को समझना है। कम्युनिस्ट का सबसे पहले बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। आई नो दैट यू ऑलरेडी रेड इन क्लास 9 मार्क्सिज्म थ्योरी क्या थी, लेनिनिज्म थ्योरी क्या थी। सोवियत यूनियन और चाइना में इसी को फॉलो किया जाता है और इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है सीपीआई। यहाँ पर सीपीआई का हम जो कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें, वो बात करते हैं। देखिए कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है। हालांकि हमें इतना डीप नहीं जाना चाहिए बट हमें चीजों को समझने के लिए क्लियर। देखो मार्क्सिस्ट क्या कहता है, मार्क्स की थ्योरी कहती है, मार्क्स कहता है कि ये एक सोसाइटी है, ठीक है। इस सोसाइटी में जो इसका फाउंडर स्ट्रक्चर है, ये जो इसका बेस है, जिसको कहते हैं बेस, इसका जो बेस है वो किनसे मिलकर बना है, लेबर से, वर्कर से, ठीक है, पुअर पीपल से, और ये जो पीपल है यहाँ हाई सोसाइटी पीपल है। मार्क्सिस्ट चाहते थे, दे बिलीव इन सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट बिलीव इन कम्युनिस्ट थ्योरी में बिलीव रखते थे, जहां वो ये मानते थे कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, है ना, कंट्री के रिसोर्सेज मीन्स अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज ऑल्सो, लैंड हो गया, है ना, और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पर किनका ज्यादातर राइट होता है, जो हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं, जो बहुत रिच पीपल होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्क्स है वो क्या चाहते थे। वो मानते थे कि अगर कंट्री के इन रिसोर्सेज पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंड ऑल रिक्वायर्ड बाय ऑल द पीपल, अगर इन रिसोर्सेज का प्रॉपर डिवीजन कर दिया जाए, प्रॉपर मीन्स कि यहाँ पर जो पुअर पीपल हैं, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनको भी इन रिसोर्सेज के अंदर इक्वल शेयर दिया जाए, तब तो उस कंट्री को हम कहेंगे एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और होता क्या है कि इनइक्वालिटी अगर किसी कंट्री के अंदर है, इफ वी सी दैट देयर आर टू वर्ल्ड, रिच एंड पुअर, टू वर्ल्ड्स आर देयर, द मेजर रीजन बिहाइंड कि जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, दीज आर ओन्ड बाय द ओनली प्राइवेट पीपल एंड देयर सोल मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इन लोगों के पास क्या आता है, कुछ नहीं। और मान लें कि ये बेस हमने हटा दिया, तो ये बताओ ये सोसाइटी टिक पाएगी, इसका बेस ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो दे बिलीव कि सारी जो रिसोर्सेज है स्पेशली इनके पास आने चाहिए, ये प्रॉफिट इनके पास चला जाता है, इनके पास कुछ नहीं आता। तो कम्युनिस्ट पार्टी इस पे बिलीव रखती थी, कम्युनिस्ट पार्टी इस पे बिलीव रखती थी कि जो एक जिसको कहते हैं कि मॉडर्न उनकी एक विचारधारा थी। मॉडर्न विचारधारा से मतलब क्या था कि जहां पर एक पुराना सिस्टम चला आ रहा था, हाई प्रोफाइल पीपल है, रिच पीपल है, प्रिविलेज्ड पीपल है, दे वर एंजॉयिंग सो मेनी राइट्स। आपने फ्रांस में देखा, रशिया में देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा, रशिया के अंदर ही मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पढ़ा आपने, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म हमने उसी में पढ़ा। हमने क्या देखा कि वहां पर जितने भी राइट्स थे, वो सब राइट्स जो थे हाई प्रोफाइल पीपल एंजॉय करते थे और पुअर पीपल को टैक्स पे करना पड़ता था, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था, आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने इस चीज को बिलीव किया। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी, हम जो इंडिया की बात कर रहे हैं, दे ऑल्सो उनकी ही विचारधारा पर, ठीक है, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, उसी विचारधारा के ऊपर जो है सीपीआई बनी। और सीपीआई क्या बिलीव करती थी, दैट सीपीआई इट ऑल्सो बिलीव इन कि जो पावर, जो यूं कहा जाए जो रिसोर्सेज होने चाहिए, वो किनके बीच में होने चाहिए, इन वर्कर्स के हाथ में।
Plus he also opposed the secessionism and communalism. Secessionism and communalism क्या होता है? Secessionism होता है बच्चों कि लोगों को on the basis of many bases are there कि लोगों को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है. अब लोग सोसाइटी से अलग करना, वैसे सेशनिज्म का जो मीनिंग है वो अलग करना होता है. इट इज जस्ट अपार्ट, डिपार्टेड और डिवाइडेड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मेनी ग्राउंड. रिच और पुअर का रीजन हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, एनी रीजन कुड बी देयर. So he was, this party was also against of this secessionism and communalism. You have to understand the communist and communalism. दोनों में बहुत फर्क है. कम्युनिस्ट जहां पर सोशलिज्म विचारधारा आइडियोलॉजी पे बिलीव रखता है, कम्युनलिज्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, द आइडियोलॉजी आर डिफरेंट. कम्युनलिज्म जो धर्म के नाम पर चीजें हमारे देश में होती है, कभी रॉयट्स होते हैं, कभी दंगे भी होते हैं हिंदू मुस्लिम को लेके. जैसे कि एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो राम मंदिर वाला है ना, उसके अंदर हमने क्या देखा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कितने साल, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो शायद मुझे याद है कि हमने जब से इन चीजों को समझना किया तब से ये क्राइसिस इन दोनों के बीच में जो है कम्युनलिज्म चलता आ रहा था. तो अब ये जाके सॉर्ट आउट हुआ और अभी भी कुछ चीजें सारी स्मूथ नहीं हुई है. तो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, सीपीआई जो थी, वो इनके अगेंस्ट में थी, कम्युनलिज्म के, सेशनिज्म के थी और सोशलिज्म के वो जो है में बिलीव रखती थी. ये मेजर पार्टी जो है वो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ कहाँ है, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. और इसने 2004 में 1.4% जो है वोटिंग हुई, तो 1.4 रिक्वायर की और 10 सीट्स ली. एंड इट इज अ स्ट्रेंथ, वी कैन से वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ लेफ्ट फ्रंट. ये पूरी तरह से जो लेफ्ट फ्रंट है, हमने लेफ्टियस्ट और राइटियस्ट देखा था. लेफ्ट फ्रंट क्या होता है, तो पूरी यहीं पर इनका डिवीजन हुआ. इसलिए मैं आपको समझा रही, लास्ट जो चीज समझने की है, लेफ्ट फ्रंट का मतलब यहाँ पर क्या है. लेफ्ट फ्रंट से मतलब यही है कि जहां पर वो अपनी आइडियोलॉजीज के साथ साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ी, विद द कोर्स ऑफ टाइम एंड नीड of the people and the country, they changes, they adopted the new modern thinking. उन्होंने उस चीज को विश्वास किया और उनको अडॉप्ट किया. साथ में हम सीपीआईएम कर लेते हैं क्योंकि फिर नहीं तो दोनों का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. सीपीआईएम जो है ये स्प्लिट हो गया. सीपीआई स्प्लिट होकर सीपीआईएम बना, जिसमें सिर्फ मार्क्सिज्म को जो है, एम हियर जस्ट इंडिकेटिंग द मार्क्सिज्म. जहां पर 1964 में ये पार्टी का जैसे स्प्लिट हुई तो इस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो भी कम होती गई. अब क्वेश्चन क्या आता है कि स्प्लिट क्यों हुआ. स्प्लिट इसलिए हुआ कि जहां पर हमने देखा सीपीआई जो है वो नई चीजों में बिलीव कर रही थी, ठीक है, मॉडर्न विचारधारा जिसको कह सकते हैं, और यूं कहा जाए कि जो नीड के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंज हुई, सीपीआईएम उसको बदलना नहीं चाहता था. एक जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सीपीआई अडॉप्ट कर रहा था, सीपीआईएम उसको रिजेक्ट कर रहा था. तो दीज वर द मेजर रीजन कि सीपीआई और सीपीआईएम दो पार्टी बनी. जो सीपीआईएम बनी वो 1964 में बनी. सपोर्टर्स किस में थे, सोशलिज्म में थे, बिल्कुल ठीक है, सेकुलरिज्म में थे, डेमोक्रेसी में, एंड दे अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. दे वर आल्सो अगेंस्ट imperialism. Imperialism, what do you mean by imperialism here? When any foreign country would try to colonize any nation, it is called the imperialism for extending their territory, for extending their empire. जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किया, साउथ अफ्रीका पे किया और बहुत सारी कंट्रीज पे किया. तो ये they were also opposed of this imperialism and they were also opposed of communalism. ठीक है, they were supported by poor factory workers, farmers, agricultural labor. सेम है, देखो आइडियोलॉजी के सीपीआई और सीपीआईएम की सेम है, लेकिन फर्क कहाँ आया, स्प्लिट क्यों हुआ कि वो नई पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे, उसमें बिलीव कर रहे थे और ये नहीं चाह रहे थे सीपीआईएम. ठीक है, दैट इज क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड गुड्स. देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड गुड्स. बहुत सारी और चीजें भी आप पढ़ेंगे. दैट हाउ दिस ग्लोबलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल इन इंडिया.
क्योंकि हम बहुत सारे देशों से कैसे जुड़े। तो ये जो CPI-M थी, इट वाज अगेंस्ट ऑफ दिस, स्पेशली वेस्ट बंगाल में रही ये CPI-M, जिसकी ज्योति बसु की मैंने बात करी, 30 इयर्स तक रहे, सपोर्टर्स ऑफ UPA रहे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि वेस्ट बंगाल में तब से जो है ममता बनर्जी की जो है सरकार चल रही है, इट इज टोटली अ फ्रंट पार्टी। तो आज जो है हमने एक पार्टी लगी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन रहे, तो वो कांशीराम रहे, ठीक है। आप लोगों ने जो मायावती है ना, मायावती को सुना होगा, देखा होगा, वो उसकी लीडर है अभी। और ये जो पार्टी है अभी जो नया 2019 जो इलेक्शन हुए, इस पार्टी को जो है थोड़ा सा इसको बहुमत मिला, वो हम बताएंगे कितना % मिला, और दोबारा से जो है ये नेशनल पार्टी बन गए सामने। तो अब जो इतना आज हमने एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। Raise your hand if you have any doubt related to today's topic.